یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ سوائے ہمارے اکابر کے کسی کے اندر یہ دمخم نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر آزادی وطن کے لیے جلا وطن حکومت بنا سکتا ہے۔ اور بھی بڑھ جائے اور امید ہے ایسا جو مجالس ہمارا ہوا ہے دلی میں اس سے لگتا ہے کہ آئندہ ہمارا اور آپ کا بہت روشن ہے۔ باندھنے کی آپ کی طرف سے ہمامہ بھی پیش کیا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح ڈاکٹر کے لیے، انجینئرنگ کے لیے اور دوسرے شعبوں کے لیے یہاں افغانستان سے طلبہ آتے ہیں تو وہ علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے بھی مادر علم جو ہے دارالعلوم دیوبند میں جو ہے یہاں پہ ویزا لے کے باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں اس وقت موجود ہوں دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں، اور یہ دارالعلوم دیوبند کا مہمان خانہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، اور یہاں موجود ہیں افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان، اور اب وہ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ میڈیا سے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن میڈیا سے ان کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اب افغانستان کے وزیر خارجہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ آج صبح دن میں 11:30 بجے وہ پہنچے تھے، شاندار ان کا یہاں استقبال ہوا، اور تقریباً 4-5 گھنٹے تک وہ یہاں موجود رہے۔ یہاں انہوں نے طلبہ سے ملاقات کی، اساتذہ سے ملاقات کی، ذمہ داروں سے ملاقات کی، بات چیت کی، کئی مدوں پر انہوں نے اظہار خیال کیا، اور اب وہ یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ میڈیا بڑی تعداد میں موجود ہے، دلی سے میڈیا یہاں موجود ہے، لوکل میڈیا موجود ہے۔ حالانکہ میڈیا کو ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع نہیں دیا گیا، روک دیا گیا، انٹرویو لینے کا بھی موقع نہیں ملا۔ باضابطہ پریس کانفرنس ہونی تھی لیکن اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ آج 11 اکتوبر کو دن میں 11:30 بجے دلی سے بائی روڈ مولانا امیر متقی خان دیوبند پہنچتے ہیں، اور جی ٹی روڈ سے دارالعلوم دیوبند کی جو لائبریری ہے، جدید لائبریری ہے جہاں دارالحدیث ہے، وہاں وہ اپنی گاڑی کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ جی ٹی روڈ پر جا کر دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، مفتی سلمان بجنوری اور دیگر اساتذہ کرام نے جا کر ان کو ریسیو کیا، ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کے ساتھ وہ گاڑیوں کے قافلہ کے ساتھ سب سے پہلے مسجد رشید پہنچتے ہیں، مسجد رشید کا وہ معائنہ کرتے ہیں، اور مسجد رشید دارالعلوم دیوبند کی بہت ہی تاریخی مسجد ہے، تاج محل کے نقشے جیسی وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ لائبریری میں جاتے ہیں، اور وہاں درس ہو رہا تھا بخاری شریف کا۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جو محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی ہے، وہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ وہاں جا کر وہ بیٹھتے ہیں ایک طالب علم کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، اور وہاں انہوں نے حدیث شریف کا درس ان سے لیا، حدیث شریف کی انہوں نے اجازت حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی تھوڑی سی بات رکھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے دارالعلوم دیوبند آ کر، ڈائریکٹ حدیث شریف کی اجازت لے کر، سند حاصل کر کے، اور ایک میرے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، میرے لیے قیمتی موقع ہے۔ اس کے بعد وہ مہمان خانہ میں تشریف لاتے ہیں، یہاں مولانا ارشد مدنی سے اور تمام ذمہ داروں سے ان کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کافی دیر تک یہاں رکنا چاہتا ہوں، کئی دن میرے قیام کا ارادہ ہے، دل کر رہا ہے اس کی فضاؤں میں رہوں، لیکن پرمیشن نہیں مل رہی ہے، پرشاسن کی طرف سے روکا جا رہا ہے، میرا جو پروٹوکول ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حالانکہ یہاں کر کے جو خوشی ہو رہی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مولانا امیر متقی خان کا پروگرام ہونا تھا 2:30 بجے سے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں، پورا آڈیٹوریم تیار تھا، اور پہلی مرتبہ اس آڈیٹوریم میں اس پروگرام کا بھی ہونا تھا، لیکن پھر اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ کوئی ایمرجنسی آ گئی، اور پروٹوکول کی وجہ سے اس کو مولانا امیر متقی خان صاحب کو اس کی پرمیشن نہیں دی گئی، اور اب وہ یہاں سے واپس جا چکے ہیں۔ کس طرح ان کا استقبال ہوا، کس طرح ان کا یہ پروگرام تاریخی رہا، اس پر میں نے لگاتار سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے جس طرح بڑے پیمانے پر ان کا خیر مقدم کیا ہے، ان کا استقبال کیا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں افغانستان کے کچھ لوگ موجود ہیں، ذرا میں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے، اور یہ میرے خیال میں افغانستان کے طلبہ ہیں۔ تو السلام علیکم، آپ افغانستان سے؟ جی، کیسا رہا آج کا جو دورہ تھا؟ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ۔ کیوں آئے تھے یہاں؟ منع کر رہے ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، وہ تو چلے گئے۔ آپ لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہمیں بات چیت کرنے کی۔ بہرحال ایک مشن یہ بھی تھا آنے کا، ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ افغانستان کے زیادہ سے زیادہ طلبہ کو دارالعلوم دیوبند میں آنے کا موقع ملے،
हुकूमत उनके लिए वीज़ा इशू करे ताकि वो दीनी तालीम हासिल कर सके। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने कहा था कि जिस तरह इंजीनियरिंग के तलबा या साइंस के तलबा दारुल इंडिया में आते हैं, उनको भारत सरकार वीज़ा देती है, तो उसी तरह दीनी तालीम के हुसूल के लिए भी भारत सरकार हमारे शहरियों को, हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा इशू करे ताकि वो लोग भारत आ सके और यहाँ तालीम हासिल कर सके, क्योंकि देवबंद रूहानी मरकज़ है, इल्मी मरकज़ है और तालिबान का यहाँ से रिश्ता है। और तालिबान के ताल्लुक़ से मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है कि 2001 में तालिबान ने बाज़ाब्ता दारुल उलूम देवबंद को ख़त भी लिख कर हिदायत एक तरह से यानी मशवरा तलब किया था, रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की थी। अलग बात है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, राब्ता नहीं हो सका, हालात अच्छे नहीं थे। और इंडिया का जो बाहर और दारुल उलूम देवबंद को इंडिया से बाहर अगर पहली मरतबा किसी मुल्क में पजीराई मिलती है तो अफ़गानिस्तान है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद 1866 में कायम हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, बल्कि पूरा एक ख़ित्ता था। और अफ़गानिस्तान की एक अलग शनाख्त थी, एक अलग पहचान थी। इस वजह से सरहदों से बाहर अगर किसी मुल्क का मैसेज गया, पैगाम गया, तो वो मुल्क अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में हमेशा उसकी वैल्यू रही है। और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ मौलाना इकबाल चुनावाला साहब मुंबई से आए हुए हैं मिलने के लिए। तो आप क्यों आए यहाँ? और माफ़ कीजिएगा, मौलाना इकबाल चुनावाला साहब मुंबई में रहते हैं और वक्फ दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा के रुकन भी हैं और बाज़ाब्ता तमाम लोगों को यहाँ मुलाकात के लिए बुलाया गया था खुसूसी तौर पर। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद के मुहतमी मुफ्ती अबुल क़ासिम नवानी साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के जितने असातिज़ा हैं, उनके अलावा मज़ाहिरुल उलूम, दारुल उलूम वक्फ देवबंद और आसपास के जितने मदारिस हैं, उन सब के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया था, मुहतमीम को बुलाया गया था मुलाकात के लिए। तो मौलाना को भी बुलाया गया था। तो कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत ही हमारे लिए तारीख़ी दिन है और बहुत ही तमाम अहले देवबंद जो है खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं कि तकरीबन 57 साल के बाद जो है अफ़गानिस्तान का वक्फ जो है सरज़मीन देवबंद के ऊपर जो है हाज़िरी दी उन्होंने और अपनी जो तारीख़ी चीज़ें, तारीख़ी रिवायत है, उनको उन्होंने देखा। असातिज़ा इकराम से जो है इजाज़त हदीस भी ली और तमाम जो है यहाँ की इमारतों को, दरसगाहों को, दारुल हदीस को देखा और तलबा ने जो है भरपूर जो है पुरजोश जो है मेहमान इकराम का इस्तकबाल किया। आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी, मैं मुलाकात भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ में जो है ज़हराना भी तनाउल फरमाया और बहुत अच्छी मुलाकात रही और बाकायदा उन्होंने मुआनका भी किया मुझसे। क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, बस उन्होंने ये कहा कि बहुत खुशी और मुसरत महसूस कर रहे हैं यहाँ और उनका जो बयान जो है वो रिकॉर्ड भी हुआ है, उसमें से आपको इक़्तिबासात मिलेंगे। उसमें हज़रत ने यही कहा कि पहले भी ये रहा कि अफ़गानिस्तान के तलबा जो है यहाँ से जो है फैज़ हासिल करते रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद की जा सकती है जो हिंदुस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात इस्तिवार हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा भी जो इसके वीज़ा के जो है बातचीत हुई कि अफ़गानिस्तान के तलबा को वीज़ा इशू किया जाए दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करने के लिए। उनका यही कहना था कि जिस तरह डॉक्टर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और दूसरे शोबों के लिए यहाँ अफ़गानिस्तान से तलबा आते हैं तो वो उलूम नबूवत को हासिल करने के लिए भी मादर इल्म जो है दारुल उलूम देवबंद में जो है यहाँ पे वीज़ा लेके बाकायदा तालीम हासिल करें। बहुत शुक्रिया। मुत्तकी साहब, कैसा रहा आपका विजिट? यहाँ पे तशरीफ लाया तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा है और जो तलबा है उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, ये आप और इलाके के जो आवाम है सबका मशहूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। इलाके के लिए हमारा और हिंदुस्तान का और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में आपका सफारत बढ़ता है और हम ज़्यादा करता है और भी हमारा सफारत कामों में और ठीक है भाई। होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। आप लोगों की मुलाकात हुई, बताया रहा 1999 के बाद कोई अफगानिस्तान का पहला कोई ऐसा शख्स था जो है इंडिया आया और ख़ासतौर पर देवबंद आया। किस तरीके की मुलाकात रही और क्या क्या बातें हुई आपको? हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारे दारुल उलूम देवबंद के, मुसलमानों के, जमीयत उलमा के बहुत पुराने ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से हैं। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं, वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं, बल्कि हज़ारों,
और पढ़ कर के यहाँ से गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले सन 14 में यहाँ से भेजकर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर ख़ारजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख़ है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमख़म नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जला वतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जला वतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट को निकाला है जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता। वो उस वक्त सबसे ताकतवर गवर्नमेंट थी। आप लोगों ने उन्हीं से लिया है अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकर आपने उन्हीं की तरह दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया और सबको धूल चटवाई और निकाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सबक हमारे अकाबिर से मिला है। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल देवबंद में ख़ास तरीके पर आना, अपनी मर्ज़ी के ऊपर आना, ये इस चीज़ की दलील है कि वो हमारी इस तारीख़ को समझते और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल देवबंद ही से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको अहलन व सहलन कहा और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत के ये पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन बनेगी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है। हम उसकी कदर करते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी साहब किस तरीके से देखते हैं आप, कितना फ़ायदेमंद आने वाले दिनों में होने वाला है? यकीनन मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जैसे लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया किसी गैर मुल्क की अपने तसल्लुत को, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उस ताकत के साथ अगर इस मुल्क के हमारे ताल्लुकात होंगे, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात होंगे, भाईचारे के ताल्लुकात होंगे, तो हमारे मुल्क को उससे बहुत फ़ायदा पहुँच जाएगा। क्या अफगानिस्तान के तलबा का कोई ऐसा मुआहदा हुआ दाखिले के लिए आएंगे? ये दोनों मुल्कों की सियासत के ऊपर है। अगर हिंदुस्तान से उनको वीज़ा मिलने लगेगा, उन्होंने कहा है कि हमसे वज़ीर ख़ारजा ने वादा किया है, मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। हिंदुस्तान में आएंगे, पढ़ेंगे। महिलाओं की तालीम के बारे में कुछ बातें हुई हैं? तालीम पे बंदिश लगाई है। हमारी कोई इस मसले के ऊपर बातचीत नहीं। मौलाना साहब उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत, कुछ राय नहीं, हमारी हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं दी उस पर? न उन्होंने पूछा, न हमने राय दी। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर लेते। और मौलाना साहब देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं, देवबंद में नहीं। हमारा जो मसलक है मजहबी, जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। न यहाँ, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न स्विट्ज़रलैंड में। जहाँ मदरसे हैं, एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। मदनी साहब, कल दिल्ली में एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें केवल पुरुषों को बुलाया गया अफगानिस्तान के जो। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें मर्द थे, औरतें नहीं थी। उन्होंने मना नहीं किया था औरतों के आगे। ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। आपको लगता है पाकिस्तान इस वक्त में ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है क्योंकि पहला दौरा और वो भी हिंदुस्तान में होता है? मैं इन चीज़ों से, यार तुम जानते हो, मैं मस्जिद मदरसे का आदमी हूँ। पाकिस्तान गए हुए मुझे 10 साल हो गए, मुझे क्या मालूम क्या होता है। ठीक है।